چلیے السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ کلاس ریزیوم کرتے ہیں ہم اپنی. تو اسٹریٹ لائن میتھڈ نا بچوں ہم نے سیکھ لیا، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ لوگوں نے اسٹریٹ لائن میتھڈ سیکھ لیا. اتنا ہی ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ جو سسٹمیٹک ایلوکیشن ہے مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے. یہ ایکول ڈسٹریبیوشن میتھڈ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اسٹریٹ لائن میتھڈ ہے، یہ ہمیں آگے. یا جو کوئی اور میتھڈ ہو سکتا ہے نا. اب اگلی میتھڈ کا نام ہے ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ. ٹھیک ہے. اسٹریٹ لائن میتھڈ میں کیا ہوتا تھا؟ ایکول ڈیپریسیشن ہوتی تھی ان ایچ ایئر. اسٹریٹ لائن میتھڈ میں یاد رکھنا کیا ہوتا تھا؟ ایکول ڈیپریسیشن ہوتی تھی ان ایچ ایئر. یعنی کہ اگر 3 سال ہیں تو اسٹریٹ لائن میتھڈ اگر ہوتا تھا تو پہلے سال، دوسرے سال اور تیسرے سال، پہلے سال بھی 300 ڈیپریسیشن، دوسرے سال بھی 300، تیسرے سال بھی 300. اور ڈیپریشیبل اماؤنٹ لیٹ سپوز 900 ہے. مگر ضروری نہیں ہے کہ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ میں بھی ایسے ہو. ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ میں ہر اگلے سال ڈیپریسیشن پچھلے سال سے ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن شیل ڈیکریز ان ایچ ایئر. ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ میں کیا ہوگا؟ ڈیپریسیشن جو ہوگی وہ ڈیکریز کرے گی ہر سال. ہر سال ڈیپریسیشن کیا ہوگی؟ پچھلے سال سے کم ہوگی. یعنی کہ اس 900 کو اگر آپ ایسے الوکیٹ کر دو، 500، 300 اور 100. 900 کو ایسے بھی تو ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے. پہلے سال آپ کو 500 ڈیپریسیشن ہے، دوسرے سال آپ کو 300 ہے، تیسرے سال کو 900. تو یہ دس دیٹ مائٹ بی ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ. تو اس طرح کا کوئی طریقہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی آنسرز آئیں گے، مطلب کچھ اس طرح کا ٹرینڈ ہوگا کہ پہلے سال زیادہ ڈیپریسیشن ہوگی، دوسرے سال کم ڈیپریسیشن ہوگی، اس سے تیسرے سال اس سے کم ڈیپریسیشن ہوگی. تو یہ ہوتا ہے کچھ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سال 400 ہوتی، دوسرے سال 300 ہوتی، اس سے تیسرے سال 200 ہو جاتی. تو یہ بھی ہو سکتا تھا ریڈیوسنگ. یعنی کہ ہوگا کیا ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ میں؟ ہر سال ڈیپریسیشن کم آئے گی پچھلے سال سے. ہر سال ڈیپریسیشن میں کمی آئے گی. اس لیے اس میتھڈ کو ہم ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کہیں گے کہ ہر سال جو ڈیپریسیشن ہوگی اس کے اندر کمی آئے گی. اس پہ کچھ کوشچنس کرتے ہیں، پھر آپ کو نا میں کوشچن سے آپ کو وہی اچھی سمجھ آ جائے گی. جیسے اگزامپل نمبر 5 یہ لیتے ہیں اور ہم اس کو سولو کرتے ہیں، مطلب ڈائریکٹلی سولو کرتے ہیں. اگزامپل 5 ہے، آپ نے اکاؤنٹنگ ایئر ہے جنوری ٹو دسمبر. ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف آف، اس کو چھوڑ دیں بیشک، بس آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک ایسٹ پرچیز کیا آپ نے 1 لاکھ کا. ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف آف 5 ہے، ریزیڈول ویلیو ہے 7776 اور ڈیپریسیشن میتھڈ ہے ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ. کیلکولیٹ ڈیپریسیشن ایچ ایئر. اسٹریٹ لائن میتھڈ میں کیا ہوتا تھا؟ اسٹریٹ لائن میتھڈ میں کیا ہوتا تھا؟ 1 اسٹیپ اپروچ ہوتی ہے. 1 اسٹیپ اپروچ ٹو فائنڈ 1 اسٹیپ اپروچ ٹو فائنڈ ڈیپریسیشن. یہاں پر آپ کیا کرتے تھے؟ کاسٹ مائنس ریزیڈیول ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی یوزفل لائف. آپ کے پاس آنسر میں ڈیپریسیشن ان روپیز آ گئی. ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ میں 1 اسٹیپ اپروچ نہیں ہوتی، یہاں پہ 2 اسٹیپ اپروچ ہوتی ہے ٹو فائنڈ
डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं, फिर आपके पास डेप्रिसिएशन आती है। स्टेप नंबर 1, डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक अपना फॉर्मूला है, 1 माइनस यूजफुल लाइफ ओवर आरवी ओवर कॉस्ट, एक ये। और स्टेप नंबर 2 में आपके पास डेप्रिसिएशन इन रुपीस आती है। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन रेट से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन इन रुपीस आती। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, ये 2 स्टेप्स जब आप करते हैं तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपके पास डेप्रिसिएशन निकलती है, तो फिर आपके पास डेप्रिसिएशन निकलती है। सही। अब ये जो एग्जांपल 5 है, इसमें इसको हमने करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। उसमें 2 स्टेप अप्रोच होगी फाइंड डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करनी, वो आता है 1 माइनस यूजफुल लाइफ रेसिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट करके। यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन रेट पहले फाइंड करना है, इसी में 1 माइनस यूजफुल लाइफ रेसिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट, तो इसको हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस यूजफुल लाइफ है यहाँ पर 5 इयर्स। अच्छा, और रेसिडुअल वैल्यू है 777 ओवर कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख। अब ये देखो जरा, ये जो आपने यहाँ पे 5 लिखा है ना, ये जो 5 है यूजफुल लाइफ, ये इस तरह नहीं है जैसे 1 है, ये छोटा 5 है। ये यानी कि ये इस रूट की पावर है, जो भी इसे कहते हैं, ये इस रूट के ऊपर इधर आएगा 5, इसके ऊपर बैठा है। सही है। अब मुझे आपने डेप्रिसिएशन रेट बताना है, क्या आता है? 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 0.4। वेरी गुड। जिस बच्चों का 0.4 आ रहा है, सब बच्चे ट्राई करें। जिनका 0.4 आ रहा है उनका आंसर ठीक है। जिनका 0.4 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो फॉर्मूला सही अप्लाई नहीं करें, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करें जब तक 0.4 नहीं आता। और अगर किसी से नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ ले, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे निकालना। तो बच्चों का चले, ठीक है। ठीक है, गुड, 0.4। अब स्टेप नंबर 2, डेप्रिसिएशन इन रुपीज। इस स्टेप नंबर 2 को हम परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म्ड इन टेबल। ये जो स्टेप नंबर 2 है ना, ये टेबल में परफॉर्म करेंगे, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर टेबल कैसे बनता है, डिप्रिसिएशन ईच ईयर निकालनी है, तो याद रखना टेबल कैसे बनेगा। हम कहेंगे ईयर, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऐसे आएगी, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ईयर है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू पहले साल के स्टार्ट में वही होगी जो कॉस्ट है, 1 लाख। और डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, ये जो स्टेप 2 था। स्टेप नंबर 2 मैंने अभी आपको कहा कि स्टेप नंबर 2 जो है ना, डेप्रिसिएशन इन रुपीस फाइंड करने वाला, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू टू डेप्रिसिएशन रेट, ये हम टेबल में परफॉर्म करेंगे। तो डेप्रिसिएशन आएगी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू जो कि है 1 लाख, और डेप्रिसिएशन रेट है 0.4, ये जो भी आप लोगों ने फाइंड की 0.4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,000। तो डेप्रिसिएशन आ गई 40,000। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 1 लाख है, 40,000 एसेट की वैल्यू में कमी आ गई, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू कितनी रह गई, 60,000। अब दूसरे साल के स्टार्ट में ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है 60,000। अब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, अब 60,000 को, क्योंकि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होना है, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ओपनिंग नेटबुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे रेट, रेट चेंज नहीं होगा, ये ओपनिंग नेटबुक वैल्यू चेंज होगी, और ये जो रेट है ये अनचेंज्ड रहेगा। तो 6 4 आपको पता है क्या होता है जी, 24, टू 24,000। और फिर आपके पास अब आ जाएगी क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू 46,000, सॉरी 36,000।
36,000 आपके पास क्लोजिंग नेटवर्क सिलेक्ट नहीं हो रहा। 36,000 और ईयर थ्री में ये 36,000 ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू बन जाएगी और 36,000 इंटू 0.4 करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी 14,400। 14,400 और अब क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू क्या आ जाएगी 36,000 माइनस 14,400। 21,600। 21,600 ईयर फोर में आ गई 21,600। अब 21,600 मल्टीप्लाई बाय 0.4 8640। 8640 अब 21,600 में से 8640 माइनस करेंगे क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू आ जाएगी 12,960। 12,960। 12,960 और अब 12,960 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब आपके पास डेप्रिसिएशन क्या आएगी 5,184। 5,184 और ये 7,776। इन वैल्यूज को गौर करो ये जो चार वैल्यूज मैंने हाईलाइट की एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट इक्वल आ गई सॉरी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे रेजिडुअल वैल्यू इक्वल आ गई क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू। ठीक है स्टार्ट ऑफ ईयर पे ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू इक्वल होती है किसके कॉस्ट के एंड ऑफ ईयर पे क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू इक्वल होगी रेजिडुअल वैल्यू। आपने क्या किया हर साल डेप्रिसिएशन कम हो रही है देखो पहले साल क्या थी 40,000 ड्रॉप आया 24 14 8 5 1 8 और इसको ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू रीजन क्या होता है क्योंकि देखो होता ये है ओवर द यूजफुल लाइफ। ओवर द यूजफुल लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट अप्लाई होता था डेप्रिसिएशन आपने सीखा था ना कॉस्ट पे रेट लगना था कॉस्ट क्योंकि कांस्टेंट था तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी क्या आनी थी रेट भी कांस्टेंट होता है तो डेप्रिसिएशन भी क्या आनी थी कांस्टेंट। हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चूज किया क्योंकि हमने जो डेप्रिसिएशन निकालनी थी वो डिक्रीज होनी थी इन ईच ईयर हमने हर साल ऐसा फॉर्मूला लगाना था जिससे डेप्रिसिएशन हर साल इंक्रीज हो। तो कॉस्ट तो नहीं हम रख सकते क्योंकि कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे भी नहीं रेट लगा सकते क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल ज्यादा होगी हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो इसलिए कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रेट अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो एंड पे बचती क्या चीज है नेटबुक वैल्यू बचती है ना क्योंकि इसने भी डिक्रीज होना होता है इन ईच ईयर याद रखने का तरीका बता रहा हूँ इस पे रेट लगाया और रेट क्या होता था कांस्टेंट। तो अब आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है डिक्रीज इन ईच ईयर सही है जी। हाँ मगर रेट स्ट्रेट लाइन मेथड में किसी और तरह आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किसी और तरह आता है ठीक है इस पे कभी फिर डिबेट करेंगे अभी नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल बात ये है कि डिप्रिसिएशन आपने डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाना था इसलिए आपने एक ऐसी चीज पे रेट लगाए हैं जो ओवर द ईयर क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी। तो ये बात समझ आई है सबको चलो एग्जाम्पल 6 करते हैं। नॉन कंटेस्टेड कॉस्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सिंपल कर दिया मैंने ताकि आप मेरे को समझ आ सके।
A non-contested cost would be 64,000. It is depreciated by reducing minus method at the rate of 25% each year. यहाँ पे आपको रेट कैलकुलेट करके दे दिया, सही है। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर 1, 2 एंड ईयर 3। तो ईयर हमारे पास है 1, 2, 3। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू 64,000, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, और फिर हमारे पास क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 64,000 इंटू 64,000 इंटू 0.25, 25% को 0.25 भी लिख सकते हैं ना। क्या आता है जी डेप्रिसिएशन, बताना जरा। 16,000, तो माइनस करो 64,000 में से 16,000, क्या आंसर आया, 48,000। दूसरे साल ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू बन गई 48,000। अब आपने दोबारा 48,000 पे रेट लगाया 0.25, क्या आंसर आया आपके पास, 12,000। 48,000 में से 12,000 माइनस कर दो, क्या थी क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू, 36,000। तीसरे साल की वैल्यू आ गई 36,000। अब आपने 36,000 पे रेट लगाया 0.25, क्या आंसर आया आपके पास, 9,000। ठीक है जी, 36,000 में से 9,000 माइनस करो, क्या आंसर आता है, 27,000। 27,000, बस 3 साल की डेप्रिसिएशन मांगी थी, वो हमने निकाल ली 3 साल की बस। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर हम क्लास को देखते हैं कहाँ लेके जाना। एग्जाम्पल 7 है, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट cost 1260,000, expected useful life of 6 years, expected residual value is rupees 240,000, required using the reducing balance method, what will be the net book value of asset after 4 years। 4 साल बाद एसेट की नेटबुक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं फिगर्स 1000 में राउंड कर लूंगा, मुझे शौक नहीं है लंबी लंबी फिगर्स लिखने का। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर, मुझे 2 स्टेप अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे स्टेप नंबर 1 सबसे पहले वहाँ पर, मुझे स्टेप नंबर 1 डेप्रिसिएशन रेट निकालना पड़ेगा, जो कि है 1 माइनस यूजफुल लाइफ ओवर आरवी ओवर कॉस्ट। 1 माइनस यूजफुल लाइफ हमारे पास है 6 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू है 240, कॉस्ट है हमारे पास 1260 जी। क्या आता है, 0 पॉइंट, रेट बता दें, राउंड कर दें, 0.241, 0.24 कर लेते हैं, चलो। अब स्टेप नंबर 2 है डेप्रिसिएशन निकालनी है, आपको आता है स्टेप नंबर 2। अब आपके पास डेप्रिसिएशन इन रुपीस के लिए आपको ओपनिंग नेटबुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है डेप्रिसिएशन रेट से, मगर ये आप परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म इन टेबल, इसको हम टेबल में परफॉर्म करेंगे। टेबल में हम सबसे पहले ईयर लिखते हैं, नेटबुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर 4 ईयर्स चाहिए, तो 4 साल तक टेबल बनाएंगे। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू तो 1260 आ जाएगी। डिप्रिसिएशन हमारे पास क्या आएगी, डिप्रिसिएशन हमारे पास आएगी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि पहले साल की डेप्रिसिएशन आएगी 1260 मल्टीप्लाई बाय 0.24 जी, 302 लिख लेते हैं, राउंड कर रहे हैं फिगर्स हम, ठीक है। 1260 में से 302 माइनस किया, कितनी वैल्यू आ गई, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू 958, 958। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 958 लिख लेते हैं, मैं राउंड कर रहा हूँ फिगर्स, ठीक है, परेशान नहीं होना।
958 मल्टीप्लाई बाय 0.24। रेट चेंज नहीं हो रहा, रेट चेंज नहीं हो रहा, नेटबुक वैल्यूज चेंज हो रही। 230, 230 जी। क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू क्या आ गई? 728, 728, 728। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा भाई 728 इंटू 0.24 क्या आता है जी? 720, 174, 174, 175 कर देते चलो, ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं 75। 5 के 4, 728 इंटू 0.24, 175 होना चाहिए ना, 4.7 है तो 175 हो जाएगा जी। 728 में से माइनस करें 175, 553, 553, 553, 553 आ गया जी। अब आप माइनस करते हैं जी, 553 इंटू 0.24 जी, 133, 133। 553 में से 133 माइनस करें 420। ये आपने याद रखना, ये रुपीज हमारे थाउजेंड में राउंड, ठीक है। तो दो मेथड्स हम लोगों ने सीख लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड्स और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मुझे आप बच्चों ने ये बताना है कि इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाकी दो मेथड्स हमारे और रह गए, इंशाल्लाह उसकी हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, सही है। कोई सवाल आज के लेक्चर से, कोई बात समझ नहीं आई हुई? क्या किया हम लोगों ने, बस जल्दी से तुम लोगों को ओवरव्यू करा रहा हूँ ताकि पक्का हो जाए। हम लोगों ने सबसे पहले कॉस्ट समझा, फिर यूजफुल लाइफ, फिर रेजिडुअल वैल्यू, फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर हम आ गए नेटबुक वैल्यू पे। हमने ओपनिंग नेटबुक वैल्यू समझा, हमने क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू समझा। फिर हमने ये समझा कि यूजफुल लाइफ जब स्टार्ट होती है तो नेटबुक वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट होती है, जब यूजफुल लाइफ एंड होती है तो नेटबुक वैल्यू इक्वल्स टू रेसिडुअल वैल्यू होती है। उसके बाद हम लोगों ने समझे डेप्रिसिएशन मेथड्स, वो दो थे, एक था स्ट्रेट लाइन मेथड, एक था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल डेप्रिसिएशन इन ईच ईयर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन इन ईच ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन डिक्रीज होगा। इसमें वन स्टेप अप्रोच होती है, इसमें टू स्टेप अप्रोच होती है। वन स्टेप अप्रोच यानी कि एक ही स्टेप से डेप्रिसिएशन इन रुपीज आ जाता है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले डेप्रिसिएशन रेट निकालना पड़ता है, 1 माइनस यूजफुल लाइफ ओवर आर वी ओवर कॉस्ट। और स्टेप 1, स्टेप 2 में फिर आपके पास डेप्रिसिएशन इन रुपीज आती है, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट। सही है जी, ये बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। इनमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन, अब ऑब्वियसली चीज़ें ज़्यादा हैं, एक एक करोगे तो फिर ही कवर होगा। और इसमें मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि आपने नोट्स बनाए हुए अगर, या स्क्रीनशॉट्स लिए हुए, देखना, रिवाइज करना। और होमवर्क में आपका क्या है, सारी बी एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स नहीं कराई, जैसे मैंने एग्जाम्पल 4 नहीं कराई तो आपने 4A भी करनी है और 4B भी करनी है। बाकी जिनकी ए करा दी है उनकी अगर ए और बी कर लोगे तो भाई क्या ही बात है, तुम लोगों की प्रैक्टिस हो गई। मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई प्रैक्टिस करने से चीज़ें पक्की होंगी। है 5A करो, 5B करो, एटलीस्ट बी पार्ट तो करो ना। इसी तरह मैंने आपको 8 नहीं कराया तो 8A 8B आप लोगों ने करना है। बी पार्ट के आंसर्स नॉर्मली क्या होगा, जो ए पार्ट के आंसर्स होंगे उससे डबल होंगे, तो इसलिए इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने चीज़ें ठीक की हैं या गलत की हैं। तो 8B तक
آپ کا ہوم ورک نہیں ہے، آپ کا ہوم ورک ہے پیج نمبر 8 تک، پیج نمبر 8 تک جتنی ایگزامپلس ہیں، اینڈ all examples and all MCQs آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 8 تک جتنے ایگزامپلس اور جتنے MCQs ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ منڈے کو اگر آپ کو کوئی کنفیوژن آئے گی تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے، صحیح؟ چلیں جی، کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سر جو ابھی ایگزامپل کی ہے وہ شو کر دیں، اسکرین شاٹ لینا ہے۔ اچھا جی لو، صحیح ہے بھائی، مشکل تو نہیں ہے چیپٹر؟ چلے جی، اللہ حافظ۔